میں ایک جاگیردار کی پرسنل سیکرٹری تھی۔ میں اسے بہت پسند کرتی تھی، اس لیے جب بھی اس کے آفس جاتی تو اپنے سینے سے دوپٹہ ہٹا دیا کرتی تھی۔ وہ ترچھی نظروں سے مجھے دیکھتا اور قاتلانہ مسکراہٹ دیتا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ میرے حسن کا دیوانہ بن جائے۔ ایک دن وہ مجھے اپنے فارم ہاؤس پر لے گیا اور پھر پوری رات ہم دونوں نے۔ آج پھر باس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ میں نے اپنی ٹائٹ قمیض سے دوپٹے کو تھوڑا سا سرکا کے پیچھے کیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے حسن اور میری شخصیت پر فدا ہو چکا ہے۔ وہ ایک بہت بڑے جاگیردار کا بیٹا تھا، بہت بڑا بزنس مین بھی تھا۔ جتنا وہ دولت مند اور امیر تھا، اتنا ہی گھمنڈ اس شخص کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ کسی بھی خوبصورت سے خوبصورت لڑکی کو وہ گھاس نہیں ڈالتا تھا، لیکن مجھ پر مر مٹا تھا۔ میرا تعلق تو ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ماڈرن تھا۔ میں نے کبھی بھی اپنے اعتماد کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میں پچھلے 6 مہینے سے اس آفس میں کام کر رہی تھی، اور اس سے پہلے بھی میں نے اچھی ہی فرم میں جاب کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے اچھے تعلیمی ریکارڈ کے ساتھ ساتھ میرا تجربہ بھی کافی تھا۔ اس لیے جاگیر شاہ نے جب انٹرویو لیتے ہوئے میرے ڈاکیومنٹس دیکھے تو ایک ترچھی نظر مجھ پر سر سے پیر تک ڈالی تھی۔ میں بہت ہی اعتماد لڑکی تھی۔ جاگیر شاہ کی ہر بات کا جواب بڑے کانفیڈنس سے دے رہی تھی۔ آخر میں اس نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا، میری فائل بند کی، کہنے لگا، کل سے آپ جاب پر آ سکتی ہیں۔ یہ سن کر میں حیران ہوئی تھی۔ ایک دم ہی اس نے فیصلہ سنایا تھا۔ حالانکہ مجھے تو لگا تھا کہ انٹرویو لے گا، پھر کچھ دن بعد مجھے کال پر پتہ چلے گا کہ جاب ملی ہے یا نہیں، لیکن اس نے تو ایک دم فیصلہ سنا کر مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ میرے یوں دیکھنے پر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، دیکھو، مجھے ایسے نہ دیکھو، مجھے بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے۔ اس کے اس طرح سے کمنٹ پر میں کچھ سوچ میں مبتلا ہوئی۔ میں نے ٹیبل پر سے اپنی فائل اٹھائی اور وہاں سے چلی گئی۔ میری عمر 25 سال تھی اور وہ شاید 30 یا 32 سال کا نوجوان تھا۔ میں نے آفس جوائن کر لیا تھا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ جاگیر شاہ گھمنڈی اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ وہ اپنے ایمپلائی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا۔ ذرا سی خلاف مزاج اگر کوئی بات ہو جاتی تو وہ سب کے سامنے مرد تو مرد، عورتوں کو بھی ذلیل کر کے رکھ دیتا تھا۔ اس کا سخت رویہ دیکھ کر پہلے تو میں بہت گھبرا سی گئی تھی، لیکن کیونکہ میں پہلے سے ہی 3 سال سے ایک فرم میں کام کر چکی تھی، اس لیے مجھے اپنے کام کا تجربہ بہت اچھا تھا۔ 1 مہینے میں ہی میں نے اپنی محنت کا لوہا منوا لیا تھا۔ کافی حد تک میں اس کے بزنس کے اتار چڑھاؤ کو سمجھ چکی تھی اور ویسے ہی کام کرتی تھی جیسے کہ جاگیر شاہ چاہتا تھا۔ حالانکہ میں بے حد خوبصورت لڑکی نہیں تھی، میری رنگت ہلکی سی سانولی تھی، لیکن میرا پہننا اوڑھنا ایک ماڈرن لڑکی کی طرح تھا۔ میں ٹائٹ لباس پہنتی تھی، بالوں کو لیئرز میں کٹوا کر رکھا کرتی تھی اور ہر وقت اپنے بالوں کو میں کھلا رہنے دیتی تھی۔ میں میک اپ بھی بڑی مہارت سے کرتی تھی اور کانفیڈنٹلی بھی بہت تھی۔ مردوں کے ساتھ بات کرنے میں مجھے کبھی بھی جھجک اور شرم یا بدحواسی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ جاگیر کے ساتھ میں بہت سی میٹنگ بھی اٹینڈ کر چکی تھی اور میرے کانفیڈنٹ کو دیکھ کر وہ شخص مجھ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ پورے 1 مہینے بعد اس نے مجھے اپنے آفس کے روم میں بلایا تھا۔ میں جیسے ہی اس کے کمرے میں گئی تو اس کے منہ پر ایک مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کمرے کے اندر بلایا، کہنے لگا، مس نازیہ، میں آپ کے کام سے بے حد خوش ہوں۔ آپ پہلی لڑکی ہیں جس نے مجھے ابھی تک شکایت کا موقع نہیں دیا۔ آپ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ میں نے مسکرا کر اپنی تعریف وصول کی تھی۔ جھٹکے سے اپنے لیئر کٹنگ کے بال ہاتھ سے پیچھے کیے۔ میں نے کہا، تھینک یو سو مچ۔ آہستہ آہستہ اب وہ مجھ سے بزنس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں کرنے لگا۔ کبھی میٹنگ کے بعد مجھے سمندر پر لے جاتا۔ ساحل سمندر پر ننگے پاؤں میں اس کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرنے لگی۔ جتنا میں اسے بدمعاش اور گھمنڈی سمجھتی تھی، وہ ایسا نہیں تھا۔
बहुत ही अलग किस्म का इंसान था। पता ही नहीं चला कि कब मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। हालांकि मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो रोमानवी किस्म की होती हैं, हकीकत से दूर अपनी अलग ही दुनिया बना लेती हैं। मैं एक हकीकत पसंद लड़की थी। मिडिल क्लास घराने से मेरा ताल्लुक ज़रूर था, लेकिन मैंने अपनी जॉब से कमाए हुए पैसे से एक अच्छे इलाके में फ्लैट किराए पर ले लिया था। अपने छोटे भाई बहनों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला करवाया था। मेरा उठना बैठना एक मॉडर्न फैमिली की तरह था। अलबत्ता मेरे वालिद सादा थे। वालिद हार्ट पेशेंट थे, इसलिए मैंने पहली बार घर से कदम निकाला था और नौकरी ढूंढ ली थी, वरना हमारे ख़ानदान में तालीम के फ़ौरन बाद लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की थी जिसने जॉब को तरजीह दी थी। मैं अपने हालात को बदलना चाहती थी और आज मैं जिस मुकाम पर थी, ख़ानदान के लड़के मेरी तमन्ना करते थे, लेकिन मैं हमेशा रिश्ते से इनकार कर देती। मैं चाहती थी कि जब मैं अपने जॉब से 1-1.25 लाख से ऊपर कमा लेती हूँ, तो जिससे मेरी शादी हो उसकी तनख्वाह भी 2-2.5 लाख से कम ना हो, क्योंकि जिस लग्जरी ज़िंदगी का मैंने खुद को आदी बना लिया था, मैं किसी भी छोटी मोटी जॉब करने वाले शख्स के साथ गुजारा नहीं कर सकती थी। जागीर शाह के साथ ताल्लुक बढ़ाने का कहीं न कहीं मेरा मकसद ये भी था कि अगर वो मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाता तो मेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजर सकती थी। वो आम जागीरदारों जैसा हरगिज़ नहीं था जो औरतों को गुलाम बनाकर रखें। शहर में ज़्यादातर उसका वक्त गुजरता था, इसलिए अगर वो मुझसे शादी की बात करता तो मैं सबसे पहले उसी के रिश्ते को तरजीह देती। इसलिए मैंने खुद पर कोई भी हद नहीं बांधी थी, ना ही जागीर को किसी हद का पाबंद किया था। वो अक्सर बात करते करते मेरा हाथ पकड़ लेता, मुझे खुद से करीब कर लेता, बजाय उसे घूरने के मैं मुस्कुराती थी। यही वजह थी कि उसकी हदें अब बढ़ने लगी थी और एक दिन वो सब हुआ जो मैं नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर मेरा रिश्ता मांगे और मुझसे शादी कर ले, जैसा कि हम मिडिल क्लास लड़कियां सोचती हैं। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि उसका मकसद कुछ और था। वो मीटिंग के बहाने मुझे अपने फार्म हाउस पर ले गया। मुझे लगा कि रात तक वापसी हो जाएगी, लेकिन जब शाम का अंधेरा गहरा होने लगा और कोई भी मीटिंग नहीं हुई, तो मैंने उसे कहा कि आपने अभी अपने मीटिंग के मेंबर्स को नहीं बुलाया। अंधेरा फैल रहा है, मुझे घर जाना है और आप जानते हैं कि यहाँ से शहर का रास्ता 2-3 घंटे का है। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, कहने लगा कोई मीटिंग नहीं है यहाँ पर। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा क्या मतलब, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? वो कहने लगा बस तुम्हारे बगैर अब वक्त नहीं गुजरता। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तो फिर मेरे माँ बाप से मेरा रिश्ता मांग लें। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा, कहने लगा मैं एक जागीरदार हूँ, तुम एक मिडिल क्लास लड़की हो, हमारा कोई जोड़ नहीं है। उसकी बात सुनकर तो मेरा दिल बुझकर रह गया। मैं तो समझती थी कि वो ऐसी सोच का मालिक नहीं होगा, लेकिन उसकी बात ने जैसे मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। उसने एक जुमले में ही मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मैंने कहा ठीक है, अच्छा किया आपने मुझे ये बता दिया कि मैं एक जागीरदार की बीवी नहीं बन सकती। ये कहकर मैंने अपना पर्स उठाया और उसके फार्म हाउस से बाहर निकलने लगी। इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम से बाहर निकलती, उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींचा। मैं इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार न थी, इसलिए उसके पहलू में जा गिरी। कहने लगा ऐसे कैसे जाने दूं? तो मैं कह तो चुका हूँ कि मैं जागीरदार हूँ और ऐसे शौक हमारे तुम जैसी लड़कियां ही तो पूरा करती हैं। ये सुनना था कि गुस्से से मेरे कानों की लौ तक सुर्ख हो गई। उसने मुझे समझ क्या रखा था? मैंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और खड़ी हो गई। मैंने कहा कि आप बहुत गलत समझे हैं मुझे। मैं कोई डरपोक किस्म की लड़की नहीं हूँ। खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की, तुम्हारे हलक का कांटा बन जाऊंगी मैं, समझे? मेरा ये कहना था कि वो गुस्से में खड़ा हो गया, मुझे बाजू से पकड़ा, कहने लगा अच्छा, तुम मुझे धमकी दे रही हो? जागीर शाह को धमकी दे रही हो?
तो ठीक है, आज की रात तुम यहीं रुकोगी, मेरे साथ और मेरी रात को रंगीन बनाओगी, और उसके बाद मैं देखता हूँ कि तुम मेरे हलक का कांटा कैसे बनती हो। बेशक मैं पुरएतमाद लड़की थी, लेकिन उस वक्त उसके फार्म हाउस पर मैं बिल्कुल अकेली थी। वहाँ उसके गार्ड थे, उसके चौकीदार थे, उसकी हुक्मरानी थी। मैं उससे अपना आपा छुड़वाने लगी, लेकिन वो मुझे ज़बरदस्ती एक कमरे में ले गया। पूरी रात उसने मेरे साथ बेरहमी का सलूक किया। मुझे बर्बाद करने के बाद मुझ पर कहकहे लगाकर हंसने लगा। कहने लगा, लो कर ली मैंने तुम्हारे साथ अपनी रातें रंगीन। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे साथ क्या कर सकती हो। मैं कमज़ोर लड़कियों की तरह रोई नहीं थी और ना ही उसके सामने रहम की भीख मांगी थी। मैं अकेली उस फार्म हाउस से निकल आई। वापस जब अपने घर पहुंची तो मेरे वालिद बेहद परेशान थे। मेरे बाबा ने मुझसे पूछा कि रात भर तुम कहाँ थीं? मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। सुबह को मैंने मीडिया के सामने उस शख्स के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। अपने चेहरे पर लगे जख्म भी दिखाए। पहले तो ये खबर खूब उठी, लेकिन जागीर शाह के पैसों के सामने इस खबर को दूसरा रंग दे दिया गया कि मैंने किसी और के साथ गुनाह किया, बदकारी की और जागीर शाह पर इल्ज़ाम लगा दिया। मैं सबके सामने बुरी बन चुकी थी, ज़हनी तवाज़ो खो चुकी थी। मैंने नौकरी भी छोड़ दी, घर में बैठ गई। लोगों का सामना करना मेरे लिए मुश्किल तरीन काम था। मेरा सारा एतमाद ख़त्म हो चुका था। लोगों के ताने और शक भरी नज़रें मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थीं। बरसों से कमाई गई इज्जत को उस शख्स ने 2 कौड़ी का करके रख दिया था। मुझे उस शख्स से इतनी नफरत थी कि मुझ पर अगर एक कत्ल माफ़ होता तो मैं जागीर शाह का कर देती। मेरे वालिद मेरी बदनामी का सदमा बर्दाश्त न कर सके, इसलिए उनको हार्ट अटैक हुआ। मेरे वालिद हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाए थे कि उनका इंतकाल हो गया। मैं खुद अपने वालिद को लेकर हॉस्पिटल गई थी और अपने वालिद के इंतकाल की खबर सुनकर वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी थी। लेकिन जब मुझे होश आया तो एक और दिल दहला देने वाली खबर मेरा इंतज़ार कर रही थी। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये खबर मेरे लिए किसी अज़ियत से कम नहीं थी। अपने वालिद के इंतकाल के कुछ दिन बाद मैं दोबारा से उसी हॉस्पिटल में गई। मुझे जॉब करनी थी, अपने घर का खर्चा चलाना था, क्योंकि सारी जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। इसलिए मैं ये बच्चा जैसी मुसीबत अपने गले में नहीं डाल सकती थी, जो कि एक गुनाह की पैदावार था और उस शख्स की निशानी था जिससे मुझे शदीद नफरत थी। मैं हॉस्पिटल गई, लेडी डॉक्टर से कहा कि आप हर सूरत मेरा अबॉर्शन कर दें, लेकिन वो मुझसे कहने लगी कि मैं बेहद कमज़ोर हूँ। फ़िलहाल मैं इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि अबॉर्शन करवाऊँ, मेरी जान का भी ख़तरा हो सकता है। इसलिए उसने मुझे कुछ ताकत की मेडिसिन लिख कर दे दी। कहने लगी कि 20 दिन तक तुम इन मेडिसिन को खाओ, इसके बाद फिर मैं तुम्हारा अबॉर्शन कर सकती हूँ। मैं अभी लेडी डॉक्टर के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरे पीछे एक औरत और एक मर्द खड़े थे। शायद वही लेडी डॉक्टर से चेकअप करवाने आए थे। और औरत का हुलिया बहुत ही अजीबो-गरीब था। देहाती किस्म के कपड़े पहन रखे थे और खूब सारा जेवर पहना हुआ था। तकरीबन 35 साल की उम्र की होगी, लेकिन उसके साथ खड़े शख्स को देखकर मेरे होश उड़े थे। वो जागीर था। उसे देखकर मेरी आंखों में नफरत सी भरने लगी, लेकिन वो मुझे बड़े गुस्से से देख रहा था। मैं वहां से उठ खड़ी हुई और बाहर निकल गई। लेकिन अगले रोज जो कयामत हमारे घर पर टूटी थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। अगले ही रोज जागीर शाह मेरे घर पर आ गया। उसके गार्ड्स भी उसके साथ मेरे घर के अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हुए। मेरी वालिदा और मेरे छोटे भाई बहन ये सब देखकर बुरी तरह से घबरा गए। मैंने उनसे कहा कि अब तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जो तुम चाहते थे वो तुम कर चुके हो। तुमने मुझे बर्बाद करना चाहा और कर लिया, मुझे बदनाम करना चाहा, वो भी तुम कर चुके हो। अब दफ़ा हो जाओ मेरे घर से, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो बड़े गुस्से से मेरे सामने आया, मेरे मुकाबिल खड़ा हो गया। कहने लगा, मेरी एक बहुत कीमती चीज़ तुम्हारे पास है, बस वो तुमसे वापस ले लूँ तो चला जाऊँगा। मैंने कहा, मेरे पास तुम्हारी कोई भी चीज़ नहीं है। उसने अपना हाथ मेरे पेट पर रखा।
मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे वजूद पर आग लगा दी हो। मैं फौरन से पीछे हटी। वो कहने लगा, ये मेरा वारिस है, तुम्हारे पास। ये सुनकर मेरा सर चकरा गया। फिर मेरे पास आकर कहने लगा कि खबरदार, जो तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की। शायद वो लेडी डॉक्टर से मेरी होने वाली बातें सुन चुका था। मैंने कहा, कौन सा बच्चा? मेरे अंदर तो किसी और की बदकारी है। यही कहा था ना तुमने मीडिया के सामने। अब तुम क्यों इस पर अपना हक जमाने आए हो? वो कहने लगा, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। मेरी खानदानी बीवी मुझे औलाद देने से कासिर है। बहुत इलाज करवाए मैंने, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे वारिस चाहिए जो तुमसे मिल सकता है। इसलिए जब तक मेरा बच्चा तुम्हारे वजूद में है, तुम्हें अपने पास रखना मेरी मजबूरी है। ये कहकर वो मेरे करीब आया। कहने लगा, तुम शराफत से मेरे साथ जाना पसंद करोगी या फिर यहाँ से उठाकर ले जाऊं? ये सुनना था कि मैं बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई। मेरी वालिदा रोने लगी। उसके आगे हाथ जोड़कर कहने लगी, खुदा के लिए मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। वो कहने लगा, नहीं छोड़ सकता। नाजिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मेरा वारिस है इसके पास, और अगर मैंने इसे आज़ाद छोड़ दिया तो ये मेरे बच्चे को मार डालेगी। मैंने कहा, हाँ, मैं मार डालूंगी। मुझे नफ़रत है तुमसे और तुम्हारे इस नाजायज़ बच्चे से भी। मेरा ये कहना था कि उसने मेरे मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ मारा। कहने लगा, मेरे बच्चे को कुछ मत कहना। अपनी औलाद की खातिर मैं तुम्हें जायज़ बीवी भी बनाने को तैयार हूँ। फिर कहने लगा कि मैं मौलवी साहब को अपने साथ लाया हूँ। फिर उसने अपने गार्ड से कहा कि नीचे जाओ, गाड़ी में जो मौलाना साहब बैठे हैं उन्हें ऊपर लेकर आओ। मैं अभी इसी वक्त इससे निकाह करूँगा। जैसे ही वो मौलवी ऊपर आया और निकाह शुरू हुआ, मैंने निकाह से इनकार कर दिया। जागीर सा तो यूँ था कि गुस्से के मारे मुझे जान से मार डालेगा। मेरी माँ से कहने लगा कि अगर अब तुम्हारी बेटी ने शराफत से मुझसे निकाह नहीं किया तो मैं इसे ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाऊँगा और तुम लोगों की ज़िंदगी अज़ियत से भर दूँगा। इसे समझाओ ये मुझसे शराफत से निकाह कर ले। अगर ये बिना चूं चां किए मुझसे निकाह कर लेती है तो तुम लोगों की घर की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। कोई तंगी नहीं आएगी तुम लोगों के पास। मेरी वालिदा मेरी मिन्नत करने लगी कि वो हर हाल में तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। बेहतर है कि तुम एक जायज़ रिश्ते के साथ उसके साथ जाओ। हम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां हमेशा बेबसी और मजबूरी के तहत खामोश हो जाती हैं। मेरा और जागीर का निकाह भी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी था। निकाह के बाद वो मुझे अपने साथ गांव में अपनी हवेली में ले आया, जहां उसकी पहली बीवी भी मौजूद थी, जो कि मुझे बड़ी ही नफरत से देख रही थी। उसके घर में मैं एक गैर ज़रूरी चीज़ थी, एक गैर ज़रूरी फ़र्द थी। अहमियत थी तो उसकी जो मेरे वजूद के अंदर पल रहा था, जागीर शाह का वारिस। मेरी सास ने मुझे एक सादा सा कमरा दिया जिसमें हर सहूलियत मौजूद थी। मेरी खिदमत के लिए 2 मुलाजिमाएं थीं, लेकिन मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। मैं कभी भी ऐसे माहौल में रहने की आदी नहीं थी। मैंने सारी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारी थी। लेकिन वो दोनों मुलाजिम औरतें मेरे पल पल भर की खबर जागीर को देती रहती और उसकी माँ को भी। मेरा जी चाहता था कि मैं उसके बच्चे को अपने तन से जुदा कर दूं, जिसकी वजह से मैं कैद हो चुकी थी। मैं यहाँ से भाग जाना चाहती थी। महल चाहे सोने का ही क्यों ना हो, अगर उसमें कैद करके रखा जाए तो वो भी पिंजरे से कम नहीं लगता। मेरा यहाँ दम घुटने लगा था। मुझे खाने पीने के लिए बेहतरीन चीज़ें दी जाती थीं और ज़बरदस्ती भी खिलाई जाती थी। एक बार मैंने खाना खाने से इनकार कर दिया। मुलाजिम मेरे लिए खाना लेकर आई तो मैंने उसके हाथ से पकड़कर ज़मीन पर ज़ोर से पटक दिया। सारा खाना ज़मीन पर गिर गया। कांच के बर्तन टूट चुके थे। शोर की आवाज़ सुनकर मेरी सास मेरे कमरे में आई। कहने लगी, ये क्या बदतमीज़ी है। मैंने कहा, मुझे नहीं खाना, मुझे कुछ भी नहीं खाना और ना ही मुझे यहाँ रहना है। खुदा के लिए मुझे आज़ाद कर दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। वो कहने लगी कि जब तक तुम जागीर शाह के बच्चे को जन्म नहीं दे देती, यहाँ से तुम्हारा जाना मुमकिन ही नहीं है। और बेफिक्र रहो, तुम जैसी शहरी आवारा लड़की को हम अपने ख़ानदान की इज्जत कभी भी नहीं बनाना चाहेंगे।
जैसे ही तुम बच्चे को जन्म दोगी तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। मैं भी यहाँ नहीं रहना चाहती थी। मुझे इस बच्चे से कोई लगाव या फिर कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि ये गुनाह का नतीजा था। लेकिन मेरा वाकई वहाँ दम घुटता था। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं खाना। मेरी सास मुझे डांट डपट कर कहने लगी कि अगर तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे को कोई भी नुकसान हुआ तो तुम नहीं जानती कि जागीर तुम्हारा क्या करेगा। लेकिन मैंने उनकी कोई भी बात ना सुनी। जागीर साहब शहर में था, बहुत कम ही गांव में आता था। लेकिन जब उसे इस बात की खबर मिली तो वो रातों रात शहर से गांव पहुंच गया। 5 घंटे का सफ़र करके जब वो गांव वापस पहुंचा तो बेहद गुस्से में था। रात के 1 बजे मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मैं उस वक्त नींद में थी। बड़ी ज़ोर से कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ और एकदम से कमरे की तमाम बत्तियां रोशन हो गईं। मैंने आंखें खोलकर देखा तो जागीर साहब बड़े गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। कहने लगा, उठकर बैठो, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने। मैं उठकर बैठ गई, लेकिन सोच चुकी थी कि आज इस शख्स के सामने हार नहीं मानूंगी। जैसे ही मैं उठकर बैठी वो मेरे बेड पर मेरे सामने बैठ गया। कहने लगा, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया, क्या तमाशा लगाया हुआ है। तुमने खाया क्यों नहीं है कुछ अभी तक, वो गुस्से से पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे इस कैद खाने में नहीं रहना। मेरा ये कहना था कि उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मेरा बाजू जोर से दबाने लगा। उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से मैं तिल मिलाकर रह गई। मैंने कहा, तुम इंसान हो या जानवर, छोड़ो मेरा हाथ। कहने लगा, अगर तुमने मेरी किसी भी बात से इख्तलाफात किया तो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इंसान से जानवर बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। मैं तुम्हारा हशर नशर बिगाड़ कर रख दूंगा। अगर तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को ज़रा सा भी कुछ हुआ तो मैंने कहा, अल्लाह करे मर जाए तुम्हारा बच्चा, जिसकी वजह से मैं इस अजियत में फंस चुकी हूँ। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर दे मारा। मेरा तो दिमाग चकरा कर रह गया। कहने लगा, आज तो तुमने ये बात ज़ुबान से निकाल दी। आइंदा अगर गलती से भी तुम्हारी ज़ुबान से ये निकला तो तुम्हारा गला घोंट दूंगा। उसके दोनों हाथ मेरे गले के जानिब बढ़े और एकदम अपने हाथों को रोका था। उस वक्त तो शदीद गुस्से में था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, रुक क्यों गए, बढ़ाओ अपने हाथ, दबाओ मेरा गला घोंट कर मुझे मार डालो। मैंने उसके दोनों हाथ पकड़े और अपने गले पर रखकर उसके हाथों से अपना गला दबाने लगी। वो मेरा हाथ पीछे करने लगा। मैं बिल्कुल पागल सी हो गई थी। मैंने कहा, मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो उठाया कैसे। मैं मार डालूंगी खुद को और मेरे साथ साथ तुम्हारा ये बच्चा भी मर जाएगा। मेरा ये कहना था कि उसका रंग एकदम फीका पड़ गया। मैं एकदम से बेड से खड़ी हो गई, सामने ड्रेसिंग पर पड़े परफ्यूम की बोतल उठाई और दीवार पर मार कर तोड़ दी। बाकी की बोतल कांच समेत मेरे हाथ में थी। मैंने वो कांच पकड़ा और अपने पेट के जानिब बढ़ा दिया। मैं इस कदर गुस्से में थी, मेरा जी चाहा कि अपने पेट में वो कांच मार लूं, खुद को ख़त्म कर लूं और इस बच्चे को भी मार डालूं, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी अज़ियत बन गई थी। ये देखना था कि वो फ़ौरन से मेरे पास आने लगा। उसकी तो ये हालत थी कि जैसे मैं उसके बच्चे को नहीं उसको मारने वाली हूँ। वो कहने लगा, देखो ऐसा मत करो, देखो ऐसा कुछ मत करना। उस वक्त वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा था, जिस कदर वो मेरे पीछे पड़ा था। अगर वो मेरे जानिब बढ़ता तो शायद गुस्से से मैं अपने पेट पर वो कांच घुसा लेती। मैंने कहा, तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। उसके बढ़ते हुए कदम फौरन से रुक गए। कहने लगा, तुम जो चाहती हो मैं वही करूँगा, लेकिन प्लीज़ इस कांच को खुद से पीछे करो। पहली बार मैंने उसके चेहरे पर खौफ देखा था, उसकी आंखों में आंसू देखे थे। औलाद इंसान को कैसे मजबूर करती है, ये मैं जागीर शाह की आंखों में देख रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे शहर जाना है। कहने लगा, ठीक है, अगर तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम अपना ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। तुम मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाओगी। मैंने उससे वादा कर लिया। वो मुझे शहर ले आया। मैं उसके शहर के बड़े से बंगले में रहने लगी। मुझ पर कोई भी पाबंदी नहीं थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा जागीर साहब मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगा।
रोज़ मुझसे पूछता कि मैंने खाना ठीक से खाया है या नहीं, लेकिन मैं जानती थी कि ये सारी बातें बच्चे की पैदाइश तक ही महदूद हैं। बहरहाल मैं भी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। 9 महीने का अरसा गुजर चुका था जब मुझे दर्द होना शुरू हुए थे। मैं बेतहाशा रोए जा रही थी। उस वक्त मुझे जागीर सा गोद में उठाकर बाहर तक लाया था। ड्राइवर से कहने लगा, फौरन गाड़ी स्टार्ट करो। मेरे साथ वो पिछली सीट पर बैठा रहा। हॉस्पिटल में जाकर मैंने उसका हाथ थामा हुआ था। मैं बहुत रो रही थी। मैंने कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है जागीर, मैं मर तो नहीं जाऊंगी। मैं दर्द से बेहाल थी। मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊंगी। वो मेरे सर को सहलाने लगा, कहने लगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। मेरी डॉक्टर कहने लगी कि इसका केस बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा है। हम या तो इस बच्चे को बचा सकते हैं या फिर आपकी बीवी को। ये सुनकर मुझे लगा था कि बस अब मेरी आखिरी वक्त आ चुका है, क्योंकि जागीर शाह को अपने वारिस से मोहब्बत थी। अपने वारिस की खातिर वो कुछ भी कर सकता था। अगर वो निकाह कर सकता था तो मुझे अपने बच्चे के खातिर कुर्बान भी कर सकता था। मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं नहीं जानती कि कब और कैसे, लेकिन मैं होश की दुनिया से गाफिल हो गई। लेकिन जब मुझे होश आया तो लगा कि शायद मैं मुअज्जा तौर पर बच गई हूँ। मैं हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बजाय एक प्राइवेट रूम में थी। नर्स मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैंने पूछा, मेरा बच्चा कैसा है? कहने लगी कि आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। ये सुनकर मेरे होश उड़े थे। मैंने कहा, ये कैसे हो सकता है? कहने लगी कि आपके शौहर से पूछा था कि हम बच्चे को बचाएं या उसकी माँ को, क्योंकि उन दोनों में से बस एक का ही बचना मुमकिन था। तो उसने कहा था कि आप मेरी बीवी को बचा लें, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मुझे हैरत का बहुत बड़ा झटका लगा था। ये कैसे हो सकता था? उस शख्स ने तो मुझे अपने वारिस की खातिर अपनाया था, फिर वो कैसे अपने बच्चे से दस्तबरदार हो सकता था? कुछ ही देर बाद जागीर शाह मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं, चेहरे पर संजीदगी थी। मुझे उस बच्चे से जरा भी लगाव नहीं था, लेकिन 9 महीने वो मेरे वजूद का हिस्सा रहा था। कैसे मुमकिन था कि मेरी आंखों से आंसू ना बहते? मेरी आंखों से आंसू बहकर तकिया भिगोने लगे। जागीर साहब बिल्कुल टूट चुका था। मेरे पास आया, अपने दोनों हाथों से मेरे आंसुओं को साफ करके मेरे सर को सहलाने लगा, जैसे मुझे तसल्ली दे रहा हो कि रो मत। पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने उसके हाथों को झटका नहीं था। मैंने कहा कि तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम्हारा वारिस तो तुम्हें मिल रहा था। तुमने अपने वारिस की खातिर मुझ जैसी मिडिल क्लास लड़की को बर्दाश्त किया था, फिर जाने देते मुझे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा कि नहीं, तुम्हारा कोई कसूर न था। जो मैं तुम्हें सजा पर सजा देता रहता, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया, उस जुल्म की ये मेरी सजा थी। फिर उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने जोड़ दिए। वो फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, नाजिया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मुझे आज़ाद कर दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वो अपना रोना भूल गया। कुछ देर मुझे हैरत से देखता रहा, फिर नाम ऐसे हिलाते हुए कहने लगा, ये मुमकिन नहीं है। मैं नहीं जानता कब और कैसे, लेकिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। तुम मेरी बीवी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। मेरे साथ मेरी बीवी की हैसियत से रहो। मैं सारी दुनिया के सामने हर बात का एतराफ़ करूँगा। मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ ज़्यादती की है, उस सब का एतराफ़ सबके सामने कर दूँगा। मैं सबको सच सच बता दूँगा। मेरे दोनों हाथ थाम कर वो मुझसे मिन्नतें कर रहा था, लेकिन मैं फ़ैसला नहीं कर पा रही थी कि मुझे उसे माफ़ करना चाहिए या नहीं। आप मुझे कुछ मशवरा दीजिए कि मैं क्या करूं। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धन्यवाद।